जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आवाज़ आ रही है सबको? जी जी आ रही है सर। ओके बच्चों, आज कंफ्यूजन हो गई एक्चुअली, टाइम टेबल के मुताबिक नहीं ले पाया लेक्चर, क्योंकि जो फिफ्थ स्लॉट है फ्राइडे में वो 11 to 12 है। ठीक है, सो आई वाज वंडरिंग कि 12 to 1 ही है। ठीक है, तो डेट्स वाई हम अब नेक्स्ट फ्राइडे से जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा 11 to 12। ठीक है, फिफ्थ स्लॉट में। ठीक है जी बच्चों, बात समझ आ गई? जी सर। Now, move towards the topic of therapeutic exercise and techniques too. In the last lecture, we have discussed about the peripheral nervous system. We have discussed about the composition of peripheral nerve. We have discussed about the mobility, how the peripheral nervous system और the central nervous system is mobile। ठीक है, उनके हमने रीजंस पढ़ी थी। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से आप कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्व को इंजर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ी थी कि इंट्रा न्यूरल पैथोलॉजी हो सकती है, एक्स्ट्रा न्यूरल पैथोलॉजी हो सकती है, और हम लोगों ने साइट्स के बारे में पढ़ा था। Now today we are going to we are going to continue the last lecture। ठीक है, that is lecture number 1। ठीक है, और in this lecture in this we will try to focus on the classification of nerve injuries and its management। ठीक है, और second lecture को हम लोग start करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, so I am going to share the screen with you people, the PPT now। We have discussed till हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ है कि इंट्रान्यूरल पैथोलॉजी क्या होती है और एक्स्ट्रा न्यूरल पैथोलॉजी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरीज। We have classified the peripheral nerve injuries into three types, that is mild, moderate, and severe. We have this classification from a scientist named Seddon. ठीक है, so we give a name, Seddon's classification of peripheral nerve injuries। ठीक है, so according to Seddon's classification of peripheral nerve injuries, neuropraxia is for mild। ठीक है, there are terms, neuropraxia is for mild, axonotmesis is for moderate type of injury, and the neuronotmesis is for severe type of injury। ठीक है, तो let's start with the milder type, that is neuropraxia। Now these are the characteristic features of neuropraxia, that is a milder type of peripheral nerve injury. There is segmental demyelination. Segmental demyelination means whenever there is an injury to a peripheral nerve, the very first mechanism which is going to occur is, or the reaction which is going to occur, is the loss of blood supply or loss of oxygen supply। ठीक है, because the capillary system of the peripheral nervous system or the nerves are very minute, very much minute. Whenever there is a compression or there is some type of injury to a peripheral nerve, it will result in loss of oxygen and loss of blood supply to distal areas। So as soon as the blood supply is lost, there will be loss of myelin sheath। ठीक है, and that will occur in segments। ठीक है, means a segment of 2 to 3 centimeter will get demyelinated as a result of loss of blood supply। ठीक है, जो श्वान सेल्स माइलिन शीट बना रहे थे वो माइलिन शीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, first character, second character is the action potential। ठीक है, the action potential, that is, or the impulse that is traveling through that axon or that nerve which has a injury, there will be either a slowing of the action potential, there will be either slowing of the impulse traveling। ठीक है, or it will or maybe it is blocked completely।
ठीक है, maybe it do not pass that injury point or injury level, ठीक है. So however, at below that injury level and above that injury level, the transmission of impulses remain normal, ठीक है. The third character of the neuropraxia, the milder type, is the muscles. They do not get atrophied. ठीक है. However, there is temporary loss of sensation. ठीक हो गया. Now, what are the causes of this milder type? ठीक है, milder type of peripheral nerve injury or the neuropraxia is caused by mild ischemia from nerve compression or from traction. ठीक है, सही है. इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, ठीक है. जो जिसमें हम लोग ने पहले जो बात की थी कि मैकेनिज्म्स में कॉजेज कौन कौन सी आ जाती हैं पेरिफेरल नर्व इंजरी की. एंड द लास्ट वन इज द रिकवरी एंड द प्रोग्नोसिस ऑफ न्यूरोप्लेक्सिया इज एक्सीलेंट, ठीक है. A patient having a neuropraxia can be 100% can be recovered 100%, ठीक है. So the next is axonotmesis. This is a moderate type of peripheral nerve injury. Now, if we talk about the characters, the first one is the loss of axonal continuity and the connective tissue coverings remain intact. Okay, so in the first in the first character is there is loss of axonal continuity, means now the axon itself, okay, as a whole is not able to provide the transmission or not able to act as a normal nerve. ठीक है, the axon between beneath the coverings, it is completely ruptured or it is completely cut down. ठीक है, however the outer connective tissue coverings they remain intact. Now the second important character is the Valerian degeneration. Valerian degeneration distal to the lesion, it means that whenever there is a axonotmesis at one point of a peripheral nerve, the distal areas supplied by that peripheral nerve, ठीक है, they starts degenerate, ठीक है. Either there will be a complete loss of there will be complete motor loss, there will be complete sensory loss, and as well as the peripheral nerve itself, tr- uh, starts breakdown, it starts its degeneration, ठीक है. This is what we call it as Valerian degeneration, means whenever there is axonotmesis at one point, ठीक है, of a peripheral nerve, its distal portion starts degenerating, which is we call it as Valerian degeneration distal to the lesion. Now there will be complete a sensory loss, ठीक है. There will be muscular atrophy, ठीक है, of the there will be muscular atrophy supplied by that particular nerve. Now the causes include there will be a prolonged compression, ठीक है, or stretch that cause an infarction or necrosis that is greater in severity as compared to the previous injury. ठीक है, previous injury में बेटा हम लोगों ने बात की थी ischemia की. Now we are talking about infarction or necrosis. Whenever there is a compression that keeps the peripheral nerve or that keeps the vascularity blocked for several time period or several minutes, it will obviously result that ischemia will obviously build up into the infarction and then into the necrosis. Now recovery here is incomplete, ठीक है. Prognosis is not good or excellent, ठीक है. Recovery is incomplete and we always require surgical intervention, ठीक है, for the treatment of axonotmesis. Now the most severe type is the neuronotmesis. Neuronotmesis is there will be a complete a section of the peripheral nerve along with its outermost coverings, whether it is epineurium, whether it is perineurium, whether it is endoneurium, all the covering outer connective tissue coverings, they are going to be ruptured here. The second important character of the neuronotmesis is Valerian degeneration. It is similar to that of axonotmesis.
Now, the third character is there will be sensory loss, complete sensory loss, there will be complete motor loss. That is also very similar to axonotmesis. And now the causes are the gunshot or stab wounds. Obviously, if there is a penetrating injury to a body part, there will be, and it gets in touch with the peripheral nerve, it completely ruptures the peripheral nerve. Okay? And obviously its prognosis is poor and very much poor, and the recovery is usually incomplete whether you go for surgical intervention as well. ठीक है, the recovery remains incomplete. तो ठीक हो गया. Now here there is a pictorial demonstration of the uh, नर्व इंजरीज. ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बात आप लोगों को बताई है, ठीक है, दैट इज ऑफ अबाउट सैडन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरीज. इसने न्यूरोप्रेक्सिया का बताया हुआ है, एक्सोनोटोमिसिस का बताया हुआ है, और न्यूरोनोटोमिसिस का बताया हुआ है. नाउ if we talk about another scientist, Sunderland classification, the Sunderland classification gives five different types of peripheral nerve injuries. ठीक है, the grade one is the one in which there is the injury to the basal lamina. ठीक है, एक्सॉन को कुछ नहीं हो रहा, एंडोन्यूरियम को कुछ नहीं हो रहा, एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम को कुछ नहीं हो रहा, जबकि क्या हो रहा है कि बेसल जो लैमिना है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी involved. ठीक है, in grade 2 of Sunderland classification, the basal lamina along with the axon is going to be ruptured or going to be blocked. ठीक है, in grade 3 of Sunderland classification, the endoneurium, the very first layer of connective tissue covering, it is going to be involved, and there is a laceration injury. ठीक है, in fourth grade there is involvement of perineurium, endoneurium, basal lamina as well as axon. And in last type of Sunderland classification, the epineurium, perineurium, endoneurium, basal lamina as well as axon. ठीक है, all of these coverings as well as the axon, ठीक है, it is going to be ruptured. ठीक है, so these are the two classifications of peripheral nerve injuries. Now move towards the management guidelines. ठीक है, so these are very much important management guidelines. ठीक है, इनको बेटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है. During the acute phase, the phase that is going to start immediately after the injury, ठीक है, it includes the following factors, and during this stage uh, we may be able to perform any of these tasks. ठीक है, in order to provide management, in order to provide protection to the uh, injured area. Now the very first is we are able to provide immobilization. ठीक है, now in the second type we are able to promote movement. ठीक है, among those patients that are having peripheral nerve injuries. Now the amount of movement and as well as intensity, ठीक है, must be closely monitorized. ठीक है, सही है, आपने इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवा देनी कि दोबारा से जो पेरिफेरल नर्व इंजर्ड हुई है वो दोबारा से पेरिफेरल नर्व जो इंजर्ड हुई है वो उसमें और कम्प्लेक्सिटी आ जाए या वो और स्वीयर हो जाए. ठीक है, the third one is we are able to perform we are able to provide supplanting or bracing, ठीक है, to any part of the body that requires it, or if there is any deformity here. ठीक है, and the last one is we are the patient education is very much important. ठीक है, in order to have a complete recovery from peripheral nerve injuries. Now during the recovery phase of management guideline, ठीक है, that is the phase when there are signs of re-innervation. ठीक है, जब भी आपको बेटा signs of re-innervation मिलेंगे, उसमें signs में क्या क्या re-innervation के signs मिलेंगे? Saltish taste आना, सॉरी सॉल्टिश नहीं, साइंस ऑफ री इनर्वेशन में आपके पास जितनी भी री इनर्वेशन होती है, ठीक है, या जब सेंसरी सेंसेशन वापस आना शुरू होती हैं, तो पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होता है. ठीक है, पेशेंट को हल्का सा भी स्टिमुलस पेनफुल स्टिमुलस के तौर पर फील होता है. ठीक है, सो व्हेन एवर ही द पेशेंट इज फीलिंग
hypersensitivity, you must know that there are these are the signs of pre-innervation. ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, या ये नहीं समझना कि ये ठीक हो गया. These are actually the signs of pre-innervation. बेटा 1 मिनट, अजान हो रही है, अजान हो जाए तो फिर. Now, let's resume with our lecture. We were talking about the recovery phase. जी बच्चों, सुन रहे हैं सारे बच्चे? यस सर, सुन रहे हैं सर. एक्सक्यूज मी. जी जी. अस्सलाम वालेकुम. यस सर, सर सुन रहे काफी हैं. सारे स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रो का लेक्चर ले रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि प्लीज सर को कन्वे कर दें हमारा मैसेज कि शायद स्लॉट्स की कोई टाइमिंग इशू है, हमें नहीं आइडिया, तो इस हाँ वजह से नहीं, हमारा मुझे वो मुझे लेक्चर चल रहा एक्चुअली, है. जी जी बेटा, मैंने शुरू में ही लेक्चर के स्टार्ट में ये बात कही है कि एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज्ड. ठीक है, क्योंकि फ्राइडे में जो फिफ्थ स्लॉट है ना, वो 11 से 12 है. ठीक है, जी सर. तो वो इस वजह से, मेरी कंफ्यूजन की वजह से बेटा सर ये हुआ मैंने है. आपको 11 बजे मेल की थी. हाँ बेटा, मैंने वो मेल भी अभी देखी है आपकी. ठीक है, चलें ठीक है आई सर, मैं गॉट उनको मैसेज कंफ्यूज्ड. कर देती हूँ कि ठीक है, सर तो को पता है. जी जी, सर मुझे थोड़ा पता है परेशान हो कि रहा है. उसकी ओके, थैंक यू हमारी सर. नेक्स्ट 11 बजे हुआ करेगी. नेक्स्ट 11 से 12 हुआ करेगा फ्राइडे को सिर्फ. ओके सर. ठीक है. ठीक है सर. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द रिकवरी फेज. ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि व्हाट विल बी द साइंस ऑफ री इनर्वेशन. जब भी बच्चों पेशेंट की जो रिकवरी स्टार्ट होना शुरू होती है, और जब पेशेंट की जो सेंसरी सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, कि उसको एक नॉर्मल स्टिमुलस भी पेनफुल स्टिमुलस लगना शुरू हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि दीज आर द साइंस ऑफ री इनर्वेशन. ठीक है, और अब उसकी जो सेंसरी सिम्टम, जो सेंसरी सेंसेशंस हैं, वो अब ट्रैवल कर रही हैं. ठीक है, सो इसमें हम कहते हैं कि हमने रिकवरी फेज में इसको देखना है. ठीक है, और इसको मैनेज करना है, कि हमारे पेशेंट को ये फील ना हो कि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी इशू है, पेशेंट को ये ना फील हो कि इससे मुझे पेनफुल कंडीशन है ये, या मुझे पेन होगी. ठीक है, तो हमने उसको बेहतर करना होता है, उस हाइपर सेंसिटिविटी को हमने ट्रीट करना होता है. ठीक है, इट इज एक्चुअली अ साइन. ठीक है, बट एंड वी हैव टू ट्रीट इट. ठीक है, सही है. सो हाउ यू वी आर गोइंग टू ट्रीट इट बाय डिसेंसिटाइजेशन. ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन कैसे करते हैं? ठीक है, बाय यूजिंग मल्टीपल टेक्सचर. ठीक है, हम लोग मल्टीपल टेक्सचर्स के चीजें लेके उनसे स्टिमुलेट करते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ द स्किन. ठीक है, हम लोग उनको टच करते हैं बार बार. कॉन्टिन्यूस टच होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो वो जो एरिया होता है जहाँ पर सेंसरी लॉस हुआ होता है, ठीक है, और अब वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी हुई थी, तो विद कॉन्टिन्यूस
सेंसरी स्टिमुलस ऑफ मल्टीपल टेक्सचर्स आप उसको डिसेंसिटाइज कर देते हो उस एरिया को। ठीक है, एक्चुअली वो अब वो पूरी तरह डिसेंसिटाइज नहीं होगा कि जी नमनेस आना शुरू हो जाएगी और सेंसरी लॉस दोबारा से हो जाएगा। नो, एक्चुअली क्या होगा, वो जो हाइपर सेंसिटिविटी वाला इशू था वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। Now, during the recovery phase, we are here to provide discriminative sensory re-education. Discriminative sensory re-education का मतलब क्या है कि the patient may be able to have the clues, ठीक है, or may be able to detect which thing is touching him or her, ठीक है। मतलब क्या वो सॉफ्ट चीज कोई उसको टच हो रही है, कोई हार्ड चीज टच हो रही है, ठीक है, या एनी सेमी सॉलिड मास है, ठीक है, वो टच हो रहा है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग आईज ओपनिंग के साथ स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, और फिर आईज क्लोज्ड के साथ स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को इस चीज की एप्रीहेंशन हो सके कि यस, आई एम एबल टू सेंस दिस मटेरियल, ठीक है। So this is what we call as discriminative sensory re-education. And the last one is the motor retraining. ठीक है, मोटर रीट्रेनिंग करवाने का क्या तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो मसल्स हैं वो अपनी शॉर्टेंड पोजीशन में बेहतर होना शुरू हो। ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेज, किसी भी मसल की एक कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेज होती है, सबको पता है, ठीक है। बाइसेप है तो बाइसेप की शॉर्टनिंग क्या है, जब एल्बोज क्लोज्ड हो जाए, ऐसे ही है ना, ठीक है। एल्बो ओपन अप होगी तो ये ट्राइसेप की क्या होगी, कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेज होगी, ठीक हो गया। जब वो आपकी क्लोज होगी तो ये किसकी कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेज होगी, आपके बाइसेप्स की, ठीक हो गया। तो मोटर रिट्रेनिंग हम लोग हमेशा करवाते हैं मसल्स को इनकी शॉर्टनेड पोजीशन में, ठीक है, होल्ड करवाते हैं। नाउ द पैटर्न ऑफ रिकवरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि रिकवरी का क्या पैटर्न होता है, किस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, ठीक है, नेचुरली क्या पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। मतलब नर्व इंजरी हो गई, नर्व इंजरी के बाद यूजुअली पेन आती है, ठीक है, सही है। नर्व इंजरी होने के बाद आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी के इश्यूज आते हैं, पेन आती है, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट को परसेप्शन आना शुरू होती है कि वो स्लो वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। फिर उसको मूविंग टच की सेंसेशंस आना शुरू होती हैं, फिर उसको कांस्टेंट टच की सेंसेशन आना शुरू होती है, फिर उसको रैपिड वाइब्रेशन की टच सेंसेशन आना शुरू होती है, और फिर एट द एंड, ठीक है, उसको अवेयरनेस बेहतर हो जाती है उसकी, ठीक है, फ्रॉम इट्स प्रॉक्सिमल पोर्शन टूवर्ड टिल टूवर्ड्स इट्स एंड, ठीक है। मतलब प्रॉक्सिमल से लेके डिस्टल एंड तक उसको जितनी भी सेंसेशंस होती हैं उसको उसका पता चलना शुरू हो जाता है। सो दैट इज एक्चुअली द पैटर्न ऑफ रिकवरी आफ्टर पेरिफेरल नर्व इंजरी, ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन, ठीक है, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड दैट इज द क्रॉनिक फेज, ठीक है। During the chronic phase, there is re-innervation potential that is going to be increased, ठीक है, to its topest level, ठीक है। Now what happens, we have compensatory functions, ठीक है। Now अब होता क्या है बच्चों, जब भी पेरिफेरल नर्व इंजर्ड होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट मोशंस का, पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट मोशंस का। जी सर, पढ़ा हुआ है सर। सो सब्स्टिट्यूटेड मोशंस क्या होती हैं कि जिसमें प्राइम मूवर आपका वीक हो जाता है, ठीक है, और हम जो पेशेंट होता है वो सेकेंडरी मूवर्स को यूज करते हुए एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। नाउ दीज आर सेम एज कंपनसेटरी एक्शन, ठीक है, और कंपनसेटरी फंक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने इस स्टेज के अंदर, क्रॉनिक फेज के अंदर, हमें ये देखना होता है कि अगर पेशेंट की रिकवरी हो गई है, पेरिफेरल नर्व इंजरी से उसकी रिकवरी हो गई है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इन कंपनसेटरी फंक्शंस को खत्म करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें ये फील हो, ठीक है, कि हमारी सेंसरी सेंसेशन या मोटर सेंसेशन अभी तक लॉस्ट है, ठीक है, रिकवर नहीं हुई, ठीक है, मस्कुलर एट्रोफी अभी तक वैसे की वैसे ही है, ठीक है, और वो बेहतर नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कंपनसेटरी फंक्शंस को कंटिन्यू रखेंगे, फिर हम कंपनसेटरी फंक्शंस को खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हमने यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि पेरिफेरल नर्व
अब इंजर्ड हो गई है, अब इसकी रिकवरी के चांसेस नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द प्रिवेंटिव केयर। Now the preventive care is emphasized on lifelong care to involved region, ठीक है। We have to emphasize on the care of that particular region, ठीक है, जिसमें peripheral nerve injury हुई है, ठीक है। उसको हम लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, ठीक है, उसकी केयर करनी होती है और उस केयर को समझाना होता है पेशेंट को कि किस तरह उसने उस रीजन को केयरफुली रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसरी लॉस है, ठीक है। वो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट टच हो जाए, ठीक है, कोई गर्म चीज टच हो जाए तो उसको फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, ना वो उसको ड्रॉ कर सकेगा क्योंकि मोटर लॉस भी है। सो दैट्स आर वी हैव टू provide patient care or educate that patient to how he or she can have a lifelong care of that involved region, ठीक है। So this is all about the first lecture, ठीक है। Now going towards the second lecture, we have the second lecture as the thoracic outlet. In the second lecture, we have different regions to have we have different syndromes, ठीक है, to learn about them, that is thoracic outlet syndrome and carpal tunnel syndrome, ठीक है। So these are two of the most common syndromes that are associated with peripheral nerve injuries and involving the upper extremity, ठीक है। First starts with thoracic outlet syndrome, ठीक है। Now thoracic outlet, as you all know that the thoracic outlet is actually a region that starts from the lateral side of the neck, ठीक है, till towards our axilla, ठीक है। This is the actually the whole of the thoracic outlet, ठीक है। सही है, ये thoracic outlet है और इस thoracic outlet के region में आपका जो brachial plexus है that is going to move, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है वो आपकी सर्वाइकल नर्व रूट से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, और इस थ्रेसिक आउटलेट के अंदर वो होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जब भी आपका ब्रेकियल प्लेक्सस इस थ्रेसिक आउटलेट के अंदर अगर उसको कोई इशू आ जाए, ठीक है, तो थ्रेसिक आउटलेट के इस रीजन में अगर ब्रेकियल प्लेक्सस को कोई इशू आ जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ठीक हो गया, सही है। नाउ लेट्स आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। So let's start with the thoracic outlet. Now, first of all, we are going to learn about the borders of the thoracic outlet. If we talk about the medial border, okay, the medial border is formed by the muscle, that is scalenus muscle, and the first rib, okay, scalenus anterior, scalenus medius, and scalenus posterior, okay. These muscles are going to form the medial border of the this is scaleni anterior, posterior, and medius are going to form the medial border of the thoracic outlet and the first rib as well. The posterior border is going to be formed by the upper trapezius and the scapula, okay, and the anterior border is formed by the clavicle, okay, the coracoid process, the pec minor muscle, and the deltopectoral fascia, okay, and the lateral border is formed by the axilla, okay. So the axilla is going to form the lateral border. So these are the borders of the thoracic outlet, okay. Now what we know about thoracic outlet syndrome, okay. Now there are three primary sites where a thoracic where a brachial plexus can be compromised, okay, within the thoracic outlet, okay. There are
three primary sites of compression to a brachial plexus. Now, if we talk about the first primary site of compression is the interscalene triangle. Interscalene triangle is a triangle, ठीक है, from where the brachial plexus moves from the neck region into the thoracic outlet, ठीक है. ये एक ओपनिंग है बिटवीन द स्केलेनाई मसल्स, ठीक है. इंटरस्केलेनाई ट्राइंगल एक बनता है जिसकी जो ट्राइंगल की अगर हम बेस की बात करें तो वो आपकी फर्स्ट रिब बना रही होती है, ठीक है, और फ्रंट के ऊपर आपका इंटीरियर स्केलेनाई होता है और मीडियल स्केलेनाई होता है, जिसके दरमियान में एक्चुअली क्या बन रहा होता है, इंटरस्केलेनाई ट्राइंगल बन रहा होता है, और यहाँ से आपकी जो है ब्रेकियल प्लेक्सस एंटर होती है फ्रॉम द नेक रीजन इनटू द थोरैसिक आउटलेट, ठीक है. नाउ द सेकंड प्राइमरी साइट इज द कोस्टोक्लेविकुलर space, ठीक है. The costoklavicular space is formed between the first rib and the clavicle, ठीक है. Now इन दोनों के दरमियान जो है आपकी कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस होती है और यहाँ पर भी आपके जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसकी कंप्रोमाइज के चांसेस हैं. Now this आप सबके सामने पिक्चर शो हो रही है, ठीक है. This black triangle, this is actually the interscalene triangle, ठीक है. और इंटरस्केलेनाई ट्रायंगल से ये जो येलो कलर की नर्व इमर्ज करें, दैट आर द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक हो गया. और द नेक्स्ट इज द कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस. दिस इज द कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस. ये जो नजर आ रही है आपको, ये कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस है, ठीक है. यहाँ पर आपके पास नीचे फर्स्ट रिब है और ऊपर क्लेविकल है, ठीक है. तो ये दोनों के दरमियान जो स्पेस है दैट इज द कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस, ठीक है. और इसमें से भी आपके पास ये सब क्लेवियन वेन है और ये येलो कलर की जो नर्व्स हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की और आर्टरी, ये इमर्ज कर रही हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रही हैं इसके थ्रू. नाउ द नेक्स्ट वन, axillary interval. Axillary interval is present on the lateral aspect, और axillary interval जो है that is present between the pec minor and the coracoid process, ठीक है. क्योंकि जो पेक्ट माइनर होता है इसकी अटैचमेंट होती है डायरेक्टली विद द कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है. सो पेक्ट माइनर के नीचे से और कोराकॉइड प्रोसेस के दरमियान, ठीक है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये एंटर होता हुआ आपकी अपर एक्सट्रीमिटी, अपर आर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है. सो एक्सिलरी इंटरवल में भी कंप्रोमाइजेशन के चांसेस होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के. एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रक्चरल एनॉमलीज, ठीक है. मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज की वजह से जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, ठीक है, उनकी वजह से भी आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस या थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम डेवलप कर सकता है, ठीक है. और उसमें आपके पास क्या क्या आ जाती हैं, सर्वाइकल रिब आ जाती है या फिर क्लेविकुलर फ्रैक्चर की मेल यूनियन आ जाती है, ठीक है. अब सर्वाइकल रिब क्या होती है? सर्वाइकल रिब हम कहते हैं उसको कि जब आपके जो ट्रांसफर्स प्रोसेस हैं वो इलोंगेट हो जाएं, ठीक है. नॉर्मल से ज्यादा अगर बड़ा ट्रांसफर्स प्रोसेस होगा किस वर्टिब्रा का, सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा का अगर ट्रांसफर्स प्रोसेस इलोंगेट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ सर्वाइकल रिब, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट रिब की तरह बिहेव कर रही होती है, उसके इतने बड़े ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज द सर्वाइकल रिब, ठीक है. ये नजर आ रहा है सबको? आप अगर आप C6 का ट्रांसफर प्रोसेस देखो तो that is a shorter one, and if you see this transverse process of the seventh cervical vertebra, it is much more elongated and it is behaving like first rib, ठीक है. So this is acting as a cervical rib, ठीक है. Now here this is the x-ray, ठीक है. बच्चों सबको नजर आ रहा है? जी सर. Now this is the X-ray, ठीक है. अब इसमें देखो आप सबको cervical rib नजर आ रही होगी, ठीक है. Let's say this one, ठीक है, ये elongated है transverse process और इसकी सेम साइड के ऊपर देखो तो this one, ये एक उससे भी बड़ा elongated process है, elongated transverse process है जो कि cervical rib की तरह behave कर रहा है, ठीक है. Actual जो first rib है that is this one, this is the first rib, ठीक है. This is the first rib, ठीक है. This one is the first rib. लेकिन इसके ऊपर ये जो elongated transfer process है ये भी cervical rib के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये भी cervical rib के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है.
Now the second one is the clavicular fracture, malunion of the clavicular fracture. This one is a malunited clavicular fracture. ठीक है, malunited क्या है, ये ऊपर और नीचे से यूनाइट कर गई है, हालांकि इसको एंड टू एंड यूनाइट करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर गई है, ऊपर नीचे से यूनाइट कर गई है, जिसकी वजह से यहाँ जो स्पेस है, ठीक है, वो कंप्रोमाइज्ड होगी और यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. Now, if we talk about the sign and symptoms of thoracic outlet syndrome, so there are variety of symptoms depending on which structure is going to be involved. Either the arterial artery can be involved, only the venous system or the venous drainage is going to be involved. ठीक है, आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है, वेन भी इन्वॉल्व हो सकती है, और एट द सेम टाइम आपकी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स हैं. ठीक है, अब वो कहता है जब तो पेरिफेरल नर्व अगर कोई इन्वॉल्व हो जाए तो उसके वही सिम्टम्स आएंगे कि जी नमनेस आ गई, पैरास्थीसिया आ गया, ठीक है, मोटर लॉस आ गया, ठीक है, और इसके अलावा वो कहता है कि वीकनेस आ गई. ठीक है, सही है, पेन आ गई पेशेंट को, ये उसके सेंसरी सिम्टम्स हैं या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं. ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जब भी हमारी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, या हमारा वेनस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, या हम उसको कह लें कि वेस्कुलर सिम्टम्स जो हमारे आते हैं, उसमें वेस्कुलर सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, कि सबसे पहले तो हमारे पास डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाती है डिस्टल स्किन की. ठीक है, डिस्कलर्ड स्किन होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है जब वेनस रिटर्न वापस नहीं होता. ठीक है, हमारी जो पल्स होती है वो लॉस होना शुरू हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा जब पल्स लॉस होना शुरू होती है, जब हमारे ऑक्सीजन नहीं मीट कर पाती, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली अल्सर्स बनना शुरू होते हैं, और फिर अल्टीमेटली वही अल्सर्स गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं कि कंप्लीट बॉडी का जो टिश्यू होता है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है. और लास्टली हमारे पास रेनॉल्ड्स फिनोमेना. ठीक है, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है विद द वेस्कुलर सिस्टम. ठीक है, समझ आगे बात की. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद thoracic outlet syndrome. Now if we talk about the types of thoracic outlet syndrome, ठीक है, we are here to find out that there are three different types of thoracic outlet syndrome. The first one is the neurogenic thoracic outlet syndrome, and we call it as a true thoracic outlet syndrome as well. Now in this type, or this type usually occurs in such individuals or in such patients that have a cervical rib. ठीक है, ये जो न्यूरोजेनिक टाइप है ये हमेशा उनमें होगी जिनमें सर्वाइकल रिब प्रेजेंट होती है बाय बर्थ. ठीक है, अब अगर आप इनकी डायग्नोस्टिक स्टडी की तरफ देखो तो इनकी डायग्नोस्टिक स्टडी में जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी मींस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल. ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं. ठीक है, अगर कभी भी हमें ये फील हो रहा हो कि मसल नर्व्स के अंदर कोई इशू है तो या इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं या नर्व कंडक्शन स्टडी करवाते हैं. नर्व कंडक्शन स्टडी से हमें पता चलता है कि ट्रांसमिशन कितनी स्पीडीली हो रही है, ठीक है, और वो नॉर्मल है या नहीं है. ठीक है, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी से एक्चुअली हमें मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलता है. ठीक है, सो ऐसे जितने भी पेशेंट्स होंगे इनमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जो फाइंडिंग्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी. ठीक हो गया. उसके बाद कहते हैं कि इसको यूजुअली इट इज मिसडायग्नोज्ड एज कार्पल टनल सिंड्रोम. इसको अक्सर ऐसे ही डायग्नोज किया जाता है कि ये थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम नहीं है, ये ट्रू थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम नहीं है, बल्कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है, बल्कि ये ट्रू थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम है. ठीक है. Now the next type is the non-specific symptomatic neurogenic thoracic outlet syndrome. ठीक है, वो कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक न्यूरोजेनिक थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी सेम वैसा ही है कि जैसा आपका न्यूरोजेनिक थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम है. ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें पेशेंट में कोई भी स्ट्रक्चरल एनॉमली प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, ना कोई सर्वाइकल रिब होगी, ना कोई मैल फ्रैक्चर होगा, मैल यूनियन होगा क्लेविकुलर फ्रैक्चर का. ठीक है, और इसमें वो कहता है कि ना ही आपको इलेक्ट्रोमायोग्राफिक फाइंडिंग्स पॉजिटिव मिलेंगी. पिछली जो टाइप थी न्यूरोजेनिक और ट्रू थ्रेसिक आउटलेट सिंड्रोम, उसमें आपको इलेक्ट्रोमायोग्राफिक फाइंडिंग्स क्या मिली थी,
नॉर्मल मिली थी, ठीक है, पॉजिटिव मिली थी, ठीक है, लेकिन जो ये टाइप है इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफिक फाइंडिंग्स जो होंगी वो आपको नेगेटिव मिलेंगी, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि यूजुअली जो जितने भी पेशेंट्स थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ आते हैं वो यूजुअली इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट टाइप इज ऑफ द वेस्कुलर टाइप, ठीक है। वेस्कुलर टाइप में ऑब्वियसली या तो आपकी आर्टीरियल सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी या फिर आपकी वेस्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी। और जब भी वो कहता है कि आर्टीरियल सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो लॉस ऑफ सेंसेशंस वगैरह आना शुरू हो जाएंगी, और जब आपकी वेस्कुलर सप्लाई लॉस होगी तो ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट अदर कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, ठीक हो गया। नाउ physical examination, ठीक है। For thoracic outlet syndrome we are going to perform 3 important tests, ठीक है। The one is the Roos test, the second one is the Addison's maneuver and the third one is the military brace test, ठीक है। ये जो तीनों टेस्ट हैं ये परफॉर्म करके एक्चुअली हम लोग चेक करते हैं कि thoracic outlet syndrome में होता क्या है, ठीक है। इन तीनों टेस्टों की जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो ऑन करके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से रूस टेस्ट करते हैं, किस तरीके से एडेसेंस मैन्यूवर करते हैं और किस तरीके से मिलिट्री ब्रेस टेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम ही इसमें हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सर क्लास जो है वो 11 o'clock हुआ करेगी आपने कहा है। जी जी बेटा, फ्राइडे को, सर सिर्फ फ्राइडे अच्छा को, सिर्फ जी फ्राइडे, सर ठीक है सर। ठीक है। ओके बच्चों, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर? आपकी क्लास का लिंक नहीं आता क्योंकि मैंने लेट जो है वो ऐड किया था इस सेक्शन में। अच्छा हम ना बेटा, मैं इंशाल्लाह ताला आजकल यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, ठीक है, ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशन। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो फिर मैं अपडेट करूंगा आपकी ना इसको स्टूडेंट्स की लिस्ट को, ठीक है। जी सर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर। सारा कुछ समझ आ गया? सर थोड़ा सा स्टार्ट से रहते हुआ आसान था सर। पढ़ना देखना पड़ेगा डिकोडिंग। ठीक है, कोई भी चीज ना समझ आए बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो या ईमेल कर सकते हो मुझे, ठीक है। सही है, हम काउंसलिंग सेशन में कोई सेशन रख लेंगे, ठीक है, और उसमें आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।